کس کے سر سجے گا پنجاب کا تاج؟ سیاسی جماعتوں نے جوڑ توڑ کا کر دیا آغاز۔ حکومت بنانے کے لیے کسی بھی جماعت کو 186 نشستیں درکار۔ نون لیگ 137 ارکان کے ساتھ بڑی سیاسی جماعت، آزاد ارکان کی تعداد 138 تک جا پہنچی۔ پیپلز پارٹی 10 اور کاف لیگ کے ارکان کی تعداد 8۔ جو آزاد امیدوار ساتھ میں لائے گا وہی حکومت بنائے گا۔ کس کے سر سجے گا پنجاب کا تاج؟ سیاسی جماعتوں نے جوڑ توڑ کر دیا آغاز۔ حکومت بنانے کے لیے کسی بھی جماعت کو 186 نشستیں درکار ہوں گی۔ نون لیگ 137 ارکان کے ساتھ بڑی سیاسی جماعت، آزاد ارکان کی تعداد 138 تک جا پہنچی۔ پیپلز پارٹی 10 اور کاف لیگ کے ارکان کی تعداد 8۔ جو آزاد امیدوار کے ساتھ ملائے گا وہی حکومت بنائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس کے سر سجے گا پنجاب کا تاج؟ سیاسی جماعتوں نے جوڑ توڑ کا آغاز کر دیا ہے۔ حکومت بنانے کے لیے کسی بھی جماعت کو 186 نشستیں درکار ہوں گی۔ نون لیگ 137 ارکان کے ساتھ بڑی جماعت ہے، جبکہ آزاد ارکان کی تعداد بھی 138 تک جا پہنچی ہے۔ حکومت سازی کا مشن مسلم لیگ نون نمبرز گیم پوری کرنے کے لیے متحرک۔ چنیوٹ کے 2 صوبائی حلقوں سے منتخب ہونے والے آزاد اراکین نے نون لیگ کی بس پکڑ لی۔ سردار ذوالفقار علی شاہ اور تیمور امجد لالی کا مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون نمبر گیم پوری کرنے کے لیے متحرک۔ چنیوٹ کے 2 صوبائی حلقوں سے منتخب ہونے والے آزاد اراکین نے نون لیگ کی بس پکڑ لی۔ پی پی 96 سے منتخب ہونے والے سردار ذوالفقار علی شاہ کا مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان۔ کہا ملکی سیاسی استحکام میں کردار ادا کریں گے۔ میرا نام ذوالفقار علی شاہ ہے۔ میں نے چنیوٹ کے حلقہ 96 سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا اور میں ایم پی منتخب ہو گیا ہوں۔ ہمارے الیکشن کا منشور علاقے کی پسماندگی کو دور کرنا تھا۔ میں نے اپنے لوگوں سے، اپنے خاندان والوں سے اور اپنے سیاسی حلیف خاص کر جامعہ محمدی شریف کے صاحبزادہ محمد قمر الحق صاحب سے مشورہ کیا اور اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پی ایم ایل این جوائن کریں گے۔ لالیاں چنیوٹ سے منتخب ہونے والے آزاد امیدوار تیمور امجد لالی نے بھی مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کی ترقی میرا منشور ہے۔ علاقے کی عوام اور کارکنوں کے مشورے سے نون لیگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں تیمور لالی ایم پی 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 94 منتخب ہوا ہوں آزاد حیثیت میں، اور 2018 کے الیکشن بھی میں نے آزاد حیثیت میں لڑا تھا، اور اس کے بعد جو ترقی کا سفر میں نے اپنے حلقے میں شروع کیا تھا ڈیولپمنٹ کا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے عوام سے، لوگوں سے مشاورت کرتے ہوئے، اپنے فیملی سے مشاورت کرتے ہوئے میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اس حلقے کی ترقی کا سفر کو جاری و ساری رکھا جائے گا۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کریں گے۔ 9 منتخب آزاد امیدوار تحریک انصاف کی حمایت کے بغیر منتخب ہوئے۔ ان کا الیکشن میں پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وقار گمن، CT 41 چنیوٹ۔ قومی اسمبلی کے حلقے 98 کے نتائج میں تبدیلی کے خلاف سمندری میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا احتجاج۔ تحریک انصاف کے کارکنوں نے مبینہ دھاندلی کے خلاف 2 بجے احتجاج کی کال دے رکھی تھی۔ کارکن پارٹی پرچم لے کر گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج RO آفس کے باہر جمع ہو گئے۔ کارکنوں نے نعرے بازی کرتے ہوئے شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ کسی کو مینڈیٹ چوری کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جنرل الیکشن 2024 جو ابھی 8 فروری کو منعقد ہوا ہے، اس میں واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے برتری حاصل کی ہے۔ اسی طرح ہمارے حلقہ NA 98 سمندری اور حلقہ PP 104 105 دونوں میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران بڑی واضح لیڈ سے جیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں رات کو 12 بجے کیا ہوا کہ ہمارا جو رزلٹ ہے وہ روک لیا گیا، حالانکہ ہم NA 98 میں 35,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے، اور جو PP ہے 105 اس میں 9,000 کی واضح لیڈ تھی۔ الیکشن میں NA 98 میں پاکستان مسلم لیگ نون نے تینوں سیٹیں جیتی تھیں۔ فارم 47 کے مطابق NA 98 سے شہباز بابر نے 1,19,443 ووٹ حاصل کیے۔ PP 104 سے عارف محمود گل نے 53,866 ووٹ حاصل کیے۔ PP 105 میں راؤ کاشف رحیم کامیاب ہوئے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ انصاف کی فراہمی تک احتجاج جاری رہے گا۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ پرامن احتجاج عوام کا حق ہے، مگر کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
कैमरा टीम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समुंदरी। हुकूमत का ताज किसके सर सजेगा? पंजाब और विफाक में लीगी रहनुमा हुकूमत बनाने के लिए पुरअज़्म, आज़ाद उम्मीदवारों के साथ राबिते तेज। आम इंतखाबात में अक्सरियत न मिलने पर सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर। आजाद उम्मीदवार हुकूमत साजी में बड़े पर। लीगी रहनुमा राना एहसान अफजल ने कहा है कि पार्टी इस वक्त पंजाब और मरकज में हुकूमत बनाने के लिए फेवरेट है। आजाद उम्मीदवारों के साथ राब्ते जारी हैं। आने वाले 2 रोज में पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी। नवाज शरीफ ने एक तो अमन का और सबको साथ लेने का मैसेज दिया, तो उसके मुताबिक जो है बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार ऐसे हैं जो पीटीआई से मुंसलिक नहीं भी हैं, वो भी हमारे साथ राब्ते में। एहसन इकबाल ने कहा कि तकरीबन 14 ऐसे एमएनएज हैं जो हमारे साथ राब्ते के अंदर हैं। राना एहसान अफजल कहते हैं कि हुकूमत बनाकर अवामी सहूलियात के लिए इकदाम उठाएंगे, मुल्क की तरक्की का पहिया दोबारा से चलाएंगे, अवाम के मसाइल का हल निकाला जाएगा, मुल्क से महंगाई और दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। वफाक में हम लोग पीपल्स पार्टी से, एमक्यूएम से और दीगर जमातों से जो है वो राब्ता कर रहे हैं हुकूमत बनाने की कोशिश के लिए। पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए क्लियर है और वहाँ तो पीएमएलएन जो है वो भरपूर तरीके से हुकूमत बनाने जा रही है। नंबर गेम पूरी करने के लिए बड़े सियासतदानों ने सर जोड़ लिए। मुस्लिम लीग नून के पंजाब और मरकज में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें जारी। कैमरामैन इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। इलेक्शन गुजर गए, सीटें मिल गईं, ताहम सियासी जमातों को मुतमईन न किया जा सका। हारने वाले उम्मीदवारों की जानिब से एहतजाज की कॉल का सिलसिला जारी। सियासी जमातों की जानिब से हुकूमत बनाने की कोशिशें। सियासी जमातों का मैंडेट तस्लीम किया जाना जरूरी। कुछ सियासी जमातों ने एहतजाज के हवाले से भी मशावरत शुरू कर दी। रहनुमा जमात इस्लामी मियां ताहर अयूब का कहना था कि सियासी जमातों का मैंडेट तस्लीम किया जाना जरूरी है, इसके बगैर इस्तेहकाम नसीब नहीं होगा। सियासी जमातों को भी चाहिए कि मिलजुल कर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इकदाम करे। जिन उम्मीदवारान ने वोट लिया उनका तल्लुक़ किसी भी सियासी पार्टी से है, तो उसको रियासत को, अदारों को उसका एहतराम करना चाहिए और जो है उनको, जिनको मैंडेट मिला है उनको असम्बली में जाना चाहिए ताकि वो आवाम से किए गए वादे पूरे कर सकें। मियां ताहर अयूब ने कहा है अब एहतजाज करना बेसूद होगा, जमातों को नताइज तस्लीम कर लेने चाहिए। पाकिस्तान की सलामती के लिए इख्तलाफात भूलकर आगे बढ़ना होगा। सियासी और माशी इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। साबका दवार में जब भी कभी इलेक्शन में धांधली हुई है या अवाम का रिजल्ट कबूल नहीं किया गया, तो इससे मुल्क को और मुल्क की मईशत को और दीगर मामलात को खासा नुकसान पहुंचा। तो मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान मजीद किसी नुकसान का मुतहम्मल नहीं हो सकता, इसलिए अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए। सियासी रहनुमाओं ने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि इस्तेहकाम के बगैर मईशत नहीं चल सकती। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। फैसलाबाद में 8 फरवरी के इंतखाबात में 15 नए चेहरों ने मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की 4 और पंजाब की 11 नशिस्तों पर नए उम्मीदवार कामयाब हुए। फैसलाबाद में 1 नहीं 2 नहीं पूरे 15 अपसेट 9 आमोज सियासतदानों ने तजर्बों को मात दे दी। जिला फैसलाबाद में 3 कौमी और 10 सूबाई नशिस्तों पर पहली बार इलेक्शन लड़ने वाले कामयाब। NA 101 में आजाद उम्मीदवार राना आतिफ ने नून लीग के इरफान मन्नान को शिकस्त से दोचार किया। NA 102 में चंगेज खान काकड़ ने साबिक वजीर आबिद शेर अली को हराया। NA 103 में 7 मरतबा मेंबर कौमी असम्बली रहने वाले अकरम अंसारी अली सरफराज से बड़े मार्जिन से मात खा गए। सूबाई असेंबली की 21 में से 10 नशिस्तों पर नए उम्मीदवार जीत गए। PP 98 से आजाद उम्मीदवार जुनेद अफजल शाही ने साबिक सूबाई वजीर अजमल चीमा को शिकस्त दी। PP 99 से अहमद मुजतबा नून लीग के शुएब अदरीस को हराकर कामयाब हुए। PP 100 से उमैर वसी ने नून लीगी उम्मीदवार खान बहादुर डोगर को शिकस्त दी। PP 107 से जावेद न्याज मंच ने साबिक MPA खालिद परवेज गिल को नॉकआउट कर दिया। PP 110 से हसन जका न्याजी ने साबिक MPA मेहर हामिद रशीद को नाकामी से 2-4 किया। PP 111 से आजाद उम्मीदवार बशारत डोगर फतेयाब हुए। PP 112 से आजाद उम्मीदवार असद महमूद, PP 113 से नदीम सादिक डोगर कामयाब, जबकि PP 115 से शेख शाहिद जावेद और PP 117 से राना अब्दुल रज़ाक ने फतह अपने नाम की। कैमरामैन हसन चौहान के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। जरावाला की PP 101 में दिलचस्प सूरत हाल है। छोटे भाई ने बड़े भाई से इलेक्शन जीत लिया। तलाल चौधरी के वालिद अशरफ चौधरी को शिकस्त दे दी गई। जड़ावाला के हल्का PP 101 में दिलचस्प सूरत हाल, छोटे भाई ने बड़े भाई को शिकस्त दे दी। PP 101 में तलाल चौधरी के वालिद अशरफ चौधरी अपने भाई अकरम चौधरी से हार गए। नौ मुंतखब MPA अकरम चौधरी ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए और अवाम का शुक्रिया अदा किया। मैं अल्लाह ताला का बहुत मशकूर हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे
इस इम्तहान में पास किया और बहुत बड़ी कामयाबी के साथ हमकिनार किया। जिस कौम जो है वो उससे प्यार करती है और उसके जज्बात जो हैं वो मैंने इलेक्शन में देखे हैं। जिस तरह उसका वालहाना वो हमारे लीडर का इस्तकबाल करते हैं और उनके जानसारों ने जिस तरह मेरी मदद की है, मेरे अवाम ने मेरे साथ मदद की है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अकरम चौधरी का कहना था कि मैं कोशिश करूंगा कि अवाम के एतमाद पर पूरा उतर सकूं। कैमरामैन मलिक शाहिद के साथ अहमद अरसलान, सिटी 41 जड़ावाला। आम इंतखाबात जंग में 10,04,200 से जायद वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। 5,68,000 मर्द और 4,36,000 से जायद खवातीन ने भी बैलेट पेपर पर ठप्पा लगाया। आम इंतखाबात में जंग के तमाम हलकों में आजाद उम्मीदवारों ने क्लीन स्वीप किया। 17,53,999 में से 10,04,200 से जायद वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। 5,68,000 से जायद मर्द वोटर्स और 4,36,000 से जायद खवातीन ने भी बैलेट पेपर्स पर ठप्पा लगाकर उम्मीदवारों को कामयाब किया। जंग में रिकॉर्ड टर्नआउट 57% से जायद रहा। 2018 में टर्नआउट 50%, जबकि 2013 में 55% रहा था। कौमी हलकों में सबसे ज्यादा टर्नआउट NA 110 में 68% से जायद रहा। सबसे ज्यादा 3,50,436 वोट कास्ट किए गए। सबसे कम टर्नआउट शहरी हलका NA 109 में रिकॉर्ड किया गया। सूबाई हलका PP 131 में सबसे ज्यादा टर्नआउट 60.86% रिकॉर्ड किया गया। शहरी हलका PP 127 में सबसे कम 47% टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। PP हलका 126 में सबसे कम 54,628 खवातीन ने वोट कास्ट किया। 62,000 से जायद वोट मुस्तरद हुए। हलका NA 110 में सबसे ज्यादा 11,105 वोट और शहरी हलका PP 127 में सबसे कम 3,759 वोट मुस्तरद हुए। फैसलाबाद के ताजरों ने नई हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। कहते हैं गुज़िश्ता 6 माह में आवाम से पेट्रोलियम लेवी की मद में 472 अरब रुपए वसूल किए गए। आने वाली हुकूमत ने रिलीफ ना दिया तो कारोबार चलाना नामुमकिन हो जाएगा। फैसलाबाद के ताजरों ने नई हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। कहते हैं गुज़िश्ता 6 माह में आवाम से पेट्रोलियम लेवी की मद में 472 अरब रुपए वसूल किए गए। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर कहते हैं ये वसूली गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 166% ज्यादा रही है। पिछले दिनों देख लें, पिछली गवर्नमेंट ने लेवी जो पेट्रोल हमारे साथ ज्यादती की, IMF की सारी शर्तें मान के 166% ज्यादा था पिछले साल की निस्बत इस साल जो गुज़िश्ता साल गुजरा है। उनका मजीद कहना था कि आने वाली हुकूमत ने रिलीफ ना दिया तो इन हालात में कारोबार चलाना नामुमकिन हो जाएगा। राना अब्दुल गफूर ने कहा कि तवक्को है कि आने वाली जो भी हुकूमत हो उसकी अवलिन तरजीह मेशत और मुल्क बचाना हो। लोगों में अब वो शऊर आ चुका है कि इस तरह की सियासत अब नहीं होगी। लोग पढ़े लिखे हैं, न्यू जनरेशन आई है, नया वोट बैंक आया है और उन्होंने आइंदा भी आप लोगों को इसी तरह जलील करना है। आपने कुछ ना किया, इसलिए नई गवर्नमेंट जो है वो अवाम को रिलीफ देने में अगर कामयाब नहीं हुई तो उसका भी यही हाल होगा जो गुज़िश्ता का। कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा करना हुकूमत की अवलिन तरजीह होनी चाहिए। फैसलाबाद के ताजिर कहते हैं कि हालात तब्दील ना हुए तो आखिरी सांसें लेती इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद।